Hello student, welcome back to Agda Code. As you know, Cognizant Gen Z hiring already started. In this video, I'll solve 8 SQL question, not any random question, actual question asked by the Cognizant Gen Z. After end of watching this video, you'll know the difficult level of SQL, what actually need to do or prepare for the SQL. I'll explain everything with depth. Also, I'll show you the solution for every code. Let's start from the first question. First, read the question carefully. So, this is the first question. Read the question, pause the video, read the question. Now, I explain. You have one table. The table is actually customer, and the customer table has two value. One customer name, and second is customer ID. So, name equal to Kabir, and ID equal to 0, 1, 2, 3, 4, something ID. So, you need to make username. How you can make username? Username will be addition of name plus ID. Name plus ID. So you need a concat. How you can add it both to string? So there's a one concat. So you can directly use the concat function. Concat the name comma ID. So it will give your username. The first part actually solved. The concat the customer with customer name with customer ID. Second password. Concatenate first three character. I need first three character. How can this string basically Kabir actually string? So first three characters substring. So I need substring. So there's one function substring. Substring of this name. First pass the string. Second start. Its index start from 1 not 0. 1 to मुझे कहाँ तक चाहिए 1 to 3. So, so it will give Kabir. KAB. Now next part I need the last 4 digit of the customer ID. Check the question with name with last 4 digit of customer ID. The last 4 digit, how can I get the last 4 digit? So there's a one function right. So there's a right function. In the right function, pass the string name, actually ID, and how many digit from the last 4 digit. And here actually you will give KAB, and here the last 4 digit 1, 2, 3, 4, and you need to concat both. Both you need to add it. So concat. So the final answer, I am written the final code. Select. I need to concat two things. First, the customer ID, customer name, comma, customer ID as username. First done, and then also concat the substring of customer name. First three character customer name with the right part RIG right of customer ID, customer ID. The last four character. So done as password and the form customer table. And there's a last part also you need to print in the ascending order. Sort the result based on the username in ascending order. So sorts mean order by. Always choose order by. Order by, and the table username, this one, order by username, and which ascending. So AAC. This will give you the ascending. If you have any doubt, you can ask. Moving to the next question. This is the next question. Pause the video, read the question. The first name, contact. So you need to find this. The first name, contact number, balance, all the customer. So find करना है name, contact number, and balance all the customer which account type is start with S means savings actually. The output should be ordered by the customer first name.
तो कस्टमर जो का नेम उसका ऑर्डर में होना चाहिए। और इसका ये हुआ, दिस इज स्कीमा। इसमें अकाउंट है, ट्रांजेक्शन है, एंड कस्टमर आईडी एंड अकाउंट टाइप। मुझे क्या क्या चाहिए, व्हाट एक्चुअली नीड? मुझे नीड है फर्स्ट नेम, कॉन्टैक्ट एंड बैलेंस। मुझे फर्स्ट नेम तो कस्टमर से फर्स्ट नेम मिल जाएगा, एंड अकाउंट टाइप भी चाहिए जिसका अकाउंट टाइप विथ एस है। तो अकाउंट टाइप व्हायर एक्चुअली अकाउंट टाइप दिस वन, and the balance this one. So I need three tables: customer, account, and account type. So moving to the next question. First, find the table properly. Which table actually need? Actually, for this question, I need three table. One customer table, and the table actually customer, na? Yes, customer. Customer. The second is account. Second, this one, and account type. The second is account, and third is account type. First, I need three tables, and the account type will give starting with SA. And those customer has account, I need to check. पहले देखो, जिसका अकाउंट और अकाउंट कस्टमर एंड अकाउंट में रिलेशन क्या है, कस्टमर आईडी दिस हियर आल्सो कस्टमर आईडी, और इन दोनों में रिलेशन क्या है, अकाउंट टाइप आईडी, दे आल्सो अकाउंट टाइप आईडी। तो तीनों टेबल को मुझे ज्वाइन करना है, थ्री टेबल ज्वाइन। बट व्हाई? एक्चुअली मुझे उस कस्टमर का लेना है जिसका अकाउंट है, और उस कस्टमर का अकाउंट का टाइप भी स्टार्ट विथ ए से होना चाहिए। तो मुझे तीनों टेबल एक साथ में चाहिए, तो ज्वाइन लगाना पड़ेगा, थ्री ज्वाइन। एक्चुअली क्वेश्चन इज मीडियम और कैन से डिफिकल्ट लेवल। फर्स्ट वी गेट द रिलेवेंट टेबल इज कस्टमर, अकाउंट एंड अकाउंट टाइप। यहाँ पे भी कस्टमर आईडी एंड ऑल्सो हियर कस्टमर आईडी प्रेजेंट, एंड यहाँ पे अकाउंट टाइप आईडी एंड अकाउंट टाइप आईडी। तो मुझे ज्वाइन करना है कस्टमर टेबल को अकाउंट टेबल से। कंडीशन का कस्टमर आईडी उस अकाउंट के लिए प्रेजेंट होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो कस्टमर का अकाउंट ही नहीं है। हो सकता है ना कुछ कुछ कस्टमर जिसका अकाउंट नहीं है फिर भी क्रेडिट कार्ड होता है। सो कस्टमर आईडी ज्वाइन विथ अकाउंट विद द कंडीशन ऑफ कस्टमर आईडी। यहाँ पे सी लिख लो, यहाँ पे ए लिखो, यहाँ पे ए टी लिखो। तो सी डॉट कस्टमर आईडी और ए डॉट कस्टमर आईडी, और ए का से इसका ज्वाइन का कंडीशन कौन सा होगा, इस दोनों में कॉमन क्या है, अकाउंट टाइप आईडी। यू कैन चेक दिस वन, अकाउंट टाइप आईडी, अकाउंट टाइप आईडी। पहले ज्वाइन, ओके, फर्स्ट आई एम ज्वाइनिंग थ्री थिंग्स। और मुझे क्या क्या नीड है, नीड मुझे चाहिए क्या, फर्स्ट नेम, कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट एंड बैलेंस। कॉन्टैक्ट कहाँ से मिलेगा, पहले से फर्स्ट नेम कॉन्टैक्ट, बैलेंस कहाँ से मिलेगा, अकाउंट से मिलेगा। So I'm writing the query one by one. First, I will make sure the join one. मुझे सिलेक्ट करना है, क्या चाहिए, फर्स्ट नेम, output written as uppercase, so you should return as uppercase, must be। and और क्या चाहिए, लेकिन उसमें तो फर्स्ट नेम नहीं था, सी डॉट फर्स्ट नेम, और पहले का अकाउंट सी डॉट फर्स्ट नेम। सी क्यों लिख रहे हो, जस्ट वेट, एज फर्स्ट नेम। सेकंड सेकंड सी डॉट, मुझे कांटेक्ट चाहिए, सी डॉट कांटेक्ट एज कांटेक्ट। और क्या चाहिए मुझे, अकाउंट से, तो मैं ए डॉट अकाउंट लिख रहा हूँ, ए डॉट अकाउंट एज बैलेंस। मुझे बैलेंस चाहिए, ए डॉट अकाउंट नहीं, ए डॉट बैलेंस। तो ए मीन्स एक्चुअली अकाउंट, यहाँ पे बैलेंस है, दिस वन बैलेंस। अब मुझे ज्वाइन करना है फॉर्म। पहला टेबल कस्टमर टेबल का नाम दिया जाए सी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सी लिखा। इस सी को ज्वाइन करना है, ज्वाइन किसके साथ, अकाउंट के साथ, और अकाउंट का नाम दिया ए। और कौन सा कंडीशन, ऑन मीन कंडीशन, इन दोनों में कॉमन क्या है, कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी इक्वल टू ए डॉट कस्टमर
आईडी, तो मुझे उस कस्टमर का मिलेगा जिसका एक्चुअली अकाउंट है। कुछ कुछ कस्टमर होते हैं जिसका अकाउंट नहीं है, फिर भी उस बैंक में क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं, क्रेडिट कार्ड होता है। एंड इसको फिर से ज्वाइन करना है। अब कौन सा अकाउंट टाइप के साथ, अकाउंट ऐसे, अकाउंट टाइप टेबल, टाइप एज एटी। अब कंडीशन क्या है इस दोनों में, अकाउंट, दोनों कॉमन क्या है इसमें, अकाउंट टाइप आईडी एंड अकाउंट टाइप आईडी। So I'm taking both of common. A dot account type ID equal to AT dot account type ID। अब तो ज्वाइन हो गया, अब मैं उस टाइप के अकाउंट चाहते हो यार। अब दिस वन, AT dot एट अकाउंट टाइप आईडी, लाइक मुझे स्टार्ट होना चाहिए से एस ए, एंड उसके बाद कोई भी कैरेक्टर, तो दिस वन, दिस लाइक ऑपरेटर एंड दिस ऑपरेटर नंबर ऑफ कैरेक्टर, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर। व्हाई, बिकॉज द क्वेश्चन मेंशन आई नीड व्हिच अकाउंट टाइप स्टार्ट विथ एस, इसलिए एक्स्ट्रा कंडीशन। एंड उसके बाद ऑर्डर भी करना है, बिकॉज द आउटपुट शुड बी ऑर्डर बाय द कस्टमर फर्स्ट नेम। तो मुझे फिर से ऑर्डर करना है, ऑर्डर बाय सी डॉट फर्स्ट नेम, एफ आई आर एस टी फर्स्ट। तो डन, एंड दिस इज एक्चुअली मीडियम लेवल क्वेश्चन। Moving to the next question, this one, and the table actually here. First read the question, write an query to display below। तुमको दिखाना है यहाँ पे क्या कैटेगरी है। First, check what actually present. The category ID and category name. Who is name start with M. So you have to tell category ID and category name. Where you can find category ID and category name. There's one category table. You can find in the category table actually. So moving, I am explaining here. So we have requirement. पहले requirement देखो मुझे क्या चाहिए, category ID चाहिए। First requirement, category ID, category name, the concept table, relevant table. First find the relevant table. Relevant table actually this one, and this is category, a channel category name actually. This one only the category ID and category name। और कुछ बोला, category name which start with M, मुझे वही नेम चाहिए जिसका स्टार्ट होगा M से, category name। तो बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, दिस वन एक्चुअली टू इजी क्वेश्चन। मुझे जो चैनल कैटेगरी टेबल है, चैनल कैटेगरी से कैटेगरी टेबल, तो इसमें मेरा आईडी भी है और नेम है। मुझे वो नेम चाहिए जिसका स्टार्ट विथ एम। तो स्टार्ट एम, पहले एम, फिर जितना मर्जी उतना कैरेक्टर, तो लाइक। तो कौन सा कंडीशन है यार, तो है यार। तो आई एम राइटिंग द क्वेरी, क्वेश्चन 3, सिलेक्ट कैटेगरी आईडी एज capital, as answer in capital, category ID, and category name as category name, and which table, channel category, channel category, this table, and where, now making the condition, category name, like. So this one actually rejects, you can say M, start with M, and there's a number of characters. So done the query. Now moving to the next question. Next, this question actually related to this one, this table. That you need to find transaction ID, and transaction amount. Also transaction amount and transaction type. All the transaction. So which transaction type? Which transaction is type is debit, and transaction amount is greater than 100 and less than 10,000, 50,000. Transaction ID, transaction amount, transaction type. तो दिस टेबल ट्रांजेक्शन, यार एक्चुअली ट्रांजेक्शन आईडी तुमको मिलेगा, यार ये ट्रांजेक्शन टाइप मिलेगा, दिस वन ट्रांजेक्शन टाइप एंड दिस वन अमाउंट।
This is only the transaction table related for this, and there's no other table. So I'm writing this one actually easy question. This is part two. So here actually you have transaction table. Transaction. In transaction table, you have present ID, amount, and also type. Type like either you have debit or credit. You have two options. You need only debit. So first you need debit. The question said you need to find debit account type, and here actually all the relevant transaction ID and the amount and type. So you need to select debit. Also the amount greater than 1000. So first there is a two condition. One, transaction type. Transaction. Transaction type equal to debit. Second, second amount greater than 10,000 and less than equal to 50,000. So you need to select all this. So this will be higher condition. So you have done select all. So I'm writing the code directly now. Question actually 4 is the first question for this one. It is actually difficult question. The first question you will get easy, then you will get the difficult one. Then select transaction ID. तुमको कौन सा चाहिए? फर्स्ट देखो ट्रांजैक्शन आईडी चाहिए. तो आई नीड टू रिटर्न लोअर अपर केस transaction ID, और you can return also transaction ID. एड्स लिख देना. ठीक है, यहाँ पे कौन सा लिखा है इस टेबल में? टेबल में छोटा बड़ा करके, अच्छा सब बड़ा होता है. ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रांजेक्शन आईडी ले लो और एड्स कर देना. और क्या चाहिए मुझे? अमाउंट भी चाहिए. अमाउंट एड्स करके उसका अपर केस कर देना. ट्रांजेक्शन टाइप फॉर्म. मुझे कहाँ से? फॉर्म. ट्रांजेक्शन टेबल से. ट्रांजेक्शन टेबल हायर अब द कंडीशन. अब कंडीशन वाला पार्ट. There are two conditions. First is transaction type must be debit. The transaction type equal to debit, not credit. And also amount, you can write in between, or you can write this also. 10,000 and amount less than 50,000. Or you can write in between operator as you wish. So done for fourth question. If you have any doubt, you can ask. If you understand, then it's a comment. Now moving to the next one. Actually, fourth done, not fifth. This one. Read the question carefully. You have two table. One is train details table, train table, train type, and train station table. All the details of all train run, either run or go to station that is space in its. अगर कोई रन करेगा, रन मतलब वो डेस्टिनेशन भी रन कर सकता है ना. कोई भी ट्रेन, कोई भी ट्रेन, there is a one things, one destination, one start, and there's a end. Like कोई ट्रेन कलकत्ता से मुंबई गया तो मुंबई से भी कोलकाता आ सकता है ना. There's a possibility. So it is like station ID, station name. Also the destination not mentioned. It should be mentioned destination also. The train ID, train name, train type, train. तुमको ये सातों कॉलम फाइंड करना है. अब कैसे करोगे? पहले क्या? ट्रेन आईडी. तो दिस वन ट्रेन नेम, दिस कॉलम ट्रेन टाइप, दिस वन ट्रेन टाइम ऑल्सो हियर. ट्रेन फॉर्म, फॉर्म मतलब कहाँ से? ट्रेन फॉर्म एंड ट्रेन टू. तो तो यही तो होगा तुम्हारा ट्रेन टू टू ट्रेन फॉर्म. मतलब ट्रेन एक, तो ट्रेन टू मतलब स्टार्ट, कहाँ से जा रहे हो, और ट्रेन फॉर्म कहाँ से आ रहे हो.
ट्रेन टू ट्रेन फॉर्म, और जैसे स्टार्ट एंड पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे ट्रेन टू एंड ट्रेन फॉर्म। मुझे ट्रेन फॉर्म चाहिए, ट्रेन टू चाहिए, एंड ट्रेन स्पीड कहाँ मिलेगा, तो मुझे इसी से मिल जाएगा। एंड ऑल द डिटेल्स ट्रेन्स दैट रन और गो टू स्टेशन दैट हैज स्पेस, तो मुझे वही स्टेशन में चाहिए जिसका स्पेस हो, तो स्टेशन का नाम दिस। आई नीड टू, I need this one, also this table. So there are two table actually I need. The relevant table. First, you should find relevant table actually what you need. I need train table. Train details. The first one, details table. Also, I need the train station table. जैसे कहाँ से ट्रेन गया, ट्रेन टू, तो उसका भी कुछ स्टेशन नेम होगा ना। एंड ट्रेन फॉर्म, उसका भी कुछ स्टेशन नेम होगा, इट शुड बी स्टेशन नेम। ट्रेन टू एंड ट्रेन फॉर्म, and train to train form actually station ID, you can say this one, train to train form station ID, तो इसके स्टेशन नेम मिल जाएगा। तो मुझे दो टेबल चाहिए, स्टेशन एंड स्टेशन नेम दैट हैज स्पेस इन इट, और उसका वो स्पेस होगा तो वो भी मुझे चाहिए। गॉट इट। मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन, पहली बात ज्वाइन। अब कितना ज्वाइन करूंगा, पहली बात मुझे ज्वाइन करना होगा ट्रेन टू से, और ट्रेन फॉर्म गया पर दो स्टेशन, तो मुझे लाइक कोलकाता, कोलकाता टू मुंबई, तो पहले बात मुझे कोलकाता टू मुंबई चाहिए, एंड सेकंड मुझे मुंबई टू कोलकाता भी चाहिए। तो इस टेबल में एक दो जॉइन हो गया, सेल्फ जॉइंट। मुझे दोनों ही चाहिए क्योंकि ट्रेन अगर कोलकाता मुंबई जाए तो मुंबई टू कोलकाता भी आएगा। तो आई नीड फर्स्ट, मुझे सेल्फ जॉइंट चाहिए उस टेबल में। सेकंड जॉइंट लगेगा कौन सा, इस दोनों टेबल के बीच में, द ट्रेन टेबल एंड ट्रेन स्टेशन टेबल, सो देयर विल बी थ्री जॉइन, so you need to do three join. Maximum the question, basically first question actually easy. The second question you need to do three join always. This is actually part two of the question, and this one is a part one. Part one actually too easy, and this one actually part two maybe. So we need to do three join, and three join. First join actually the train table, train details table, join। मैं इसको join करूंगा, train tables, train details, इसी के साथ इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। पहले बात टेबल, इसका कोई नाम ले लो, S1 और S2, स्टेशन वन, एंड ऑन, जो इसका S2 नाम दे दो, इसका S1 नाम दे दो। तो S1 डॉट ट्रेन फॉर्म इक्वल टू S1 डॉट, सॉरी S2 डॉट स्टेशन आईडी, और आई एम राइटिंग फाइनल हियर। क्वेश्चन 5, देखो पहले ज्वाइन कौन सा मुझे ट्रेन टेबल्स को एंड स्टेशन को तो पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर उसके साथ मुझे फिर से ट्रेन स्टेशन टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। आई एम जस्ट गेटिंग कंफ्यूजन, जस्ट 1 मिनट, मुझे थोड़ा कंफ्यूज होगा। पहले इस टेबल से मुझे इस टेबल चाहिए, फिर ट्रेन का, अच्छा ट्रेन टू से भी ट्रेन स्टेशन चाहिए, ट्रेन फॉर्म से भी स्टेशन नेम चाहिए। तो सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ा गलत कर दिया, सेल्फ ज्वाइन नहीं लगेगा, दो तीन ज्वाइन करना पड़ेगा। पहले ज्वाइन ट्रेन टू के लिए, ट्रेन, पहले मुझे क्या चाहिए ट्रेन टू के लिए, तो मुझे आईडी चाहिए, स्टेशन आईडी, तभी मुझे स्टेशन नेम मिलेगा। एंड ट्रेन फॉर्म के लिए मुझे भी चाहिए स्टेशन आईडी। तो दो जो ज्वाइन होगा ना, एक बार ट्रेन टू के लिए स्टेशन आईडी एंड ट्रेन फॉर्म के लिए स्टेशन आईडी, तो दो ज्वाइन होगा, टोटल टू ज्वाइन, एंड बोथ ज्वाइन विथ ट्रेन स्टेशन टेबल ऑन दिस टेबल, ट्रेन स्टेशन टेबल, क्योंकि मुझे ट्रेन टू के लिए आई नीड फॉर द ट्रेन टू स्टेशन आईडी, एंड द फॉर्म ट्रेन फॉर्म ऑल्सो आई नीड स्टेशन आईडी, so that I can get the station name. Got it? So join को पहले join को देखो अच्छे से, मैं डायरेक्टली join वाला कंडीशन लिख रहा हूँ, ठीक है। ट्रेन, उसके बाद ऊपर का कंडीशन में लिख दूंगा ट्रेन डिटेल्स, डिटेल्स टेबल, तो इसका कुछ नाम दे रहा हूँ एज टी, उसको साथ ज्वाइन करूंगा। ज्वाइन कौन सा, ट्रेन स्टेशन
ट्रेन स्टेशन टेबल, स्टेशन टेबल, इसका नाम दे दे S1, एज S1 ऑन। पहला कंडीशन मुझे क्या चाहिए ट्रेन टू के लिए, T dot train to और पहले वाला first one actually train form then train to, or you can write whatever you want. T dot train form equal to S1 dot train station ID। तो मुझे जहां से ट्रेन जा रहे हैं उसका मुझे स्टेशन तो मिल गया। अब मुझे ट्रेन टू जहां से आ रहे हैं, मतलब देखो यहाँ दो स्टेशन होता है ना, एक स्टार्ट एक एंड पॉइंट। जैसे मुंबई से ट्रेन, कोलकाता से ट्रेन जा रहे तो उसका भी स्टेशन चाहिए, और मुंबई से ट्रेन तो उसका भी आईडी है तो मुझे उसको भी चाहिए। तो फिर से ज्वाइन करो, ज्वाइन, फिर से इसी को ही ट्रेन स्टेशन टेबल को एज S2 अब लिख दूंगा, एज S2 एंड कंडीशन एक्चुअली ऑन T डॉट ट्रेन टू इक्वल टू ST डॉट स्टेशन नेम, स्टेशन आईडी। स्टेशन आईडी से मुझे स्टेशन नेम वगैरह मिल जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन हायर कंडीशन, एक्चुअली व्हाई नीड दिस हायर कंडीशन, बिकॉज और गो टू स्टेशन दैट हैज स्पेस, मुझे वो स्टेशन चाहिए जिसका बीच में स्पेस हुआ। जिसका बीच में स्पेस हुआ मतलब क्या है इसका एक्चुअली, जैसे दो नाम होता है ना, जस्ट टू नेम, जैसे टू नेम लाइक शियालदा, कोलकाता, और दिस एक्चुअली स्पेस और काविर शेख जैसे नेम काविर एसके, सो दिस स्पेस आई नीड द नेम स्टेशन व्हिच हैव एक्चुअली स्पेस। तो है यार फर्स्ट वन S1 डॉट स्टेशन नेम लाइक, तो मुझे पहले तो पहले जितना मर्जी उतना कैरेक्टर से स्टार्ट हुआ उसका बीच में एक स्पेस, फिर जितना मर्जी उतना कैरेक्टर, एंड ऑल्सो, और ये भी चाहिए और S2 के लिए भी चाहिए कोई एक में, तो S2। अब यहाँ पे लिख दो तुम कौन सा कॉलम चाहते हो, मुझे 7 कॉलम चाहते हो। तो सिलेक्ट, पहले तो ट्रेन टेबल T डॉट ट्रेन आईडी, मुझे क्या क्या चाहिए ट्रेन आईडी, ना राइट दिस वन, मुझे ट्रेन आईडी चाहिए, ट्रेन नेम चाहिए, ट्रेन टाइप चाहिए, ट्रेन T डॉट ट्रेन आईडी मिल गया, ट्रेन नेम मिल गया, T डॉट ट्रेन टाइप मिल गया, एंड और क्या चाहिए T डॉट, बिकॉज आई हैव टेक 10 डेज एज T डॉट ट्रेन टाइम चाहिए, ट्रेन टाइम, एंड T डॉट ट्रेन टू कहाँ से जा रहा है, एंड T डॉट ट्रेन फॉर्म भी चाहिए, T डॉट ट्रेन फॉर्म, और क्या चाहिए T डॉट ट्रेन स्पीड। हो गया, मिल गया, क्योंकि मुझे देखो कहाँ कौन सा स्टेशन जा रहा है उसका नाम और कौन सा स्टेशन गया उस दोनों का नाम चाहिए, इसलिए मैंने दोनों को ज्वाइन किया actually. So if you have any doubt, you can ask. Moving to the next question and sixth question. The same question as in part two. Write in query, find all train name and train and type description and station name. Train name this one and type train type this one and station name this one. We need to merge three table. Now we need to join three table. Just join three table and confound. What is the common between three table? First, the station ID. Here actually station ID, and the second train type. Here actually train type. So join three table and you can find easily. So मुझे ज्वाइन करना है तीनों टेबल के साथ, एंड मैं एक बार ज्वाइन करूँ तो मुझे मिल जाएगा। सो दैट इज एक्चुअली इजी क्वेश्चन। जस्ट थ्री टेबल का ज्वाइन कर दो, क्वेश्चन 6 ज्वाइन करो। पहले डायरेक्टली मैं ज्वाइन लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए ज्वाइन कैसे हो रहा है। तो मुझे ट्रेन डिटेल्स टेबल एज T1 T लिख रहा हूँ मैं, इसको साथ ज्वाइन करना है मुझे ट्रेन, नेक्स्ट कौन सा टेबल है, ट्रेन टाइप टेबल, टेबल एज इसका नाम तो टी, टीपी। तो ऑन इस दोनों का मुझे कॉमन क्या है, ट्रेन टाइप T डॉट ट्रेन टाइप इक्वल टू TP डॉट ट्रेन टाइप। तो जिन दोनों का ट्रेन टाइप मिल गया वही मुझे चाहिए दोनों का। अब
अब इसको फिर से ज्वाइन करना है। अगेन वी नीड टू ज्वाइन। एंड व्हाई? बिकॉज मुझे और इस टेबल को भी चाहिए जिसके स्टेशन नेम भी चाहिए। आई नीड स्टेशन नेम ऑल्सो। पहले इस दोनों से फिल्टर किया जिसका जिसका ट्रेन टाइप इस दोनों में सेम है, तो मुझे वो मिलेगा ना। इसके साथ इसका फिल्टर करना है। अब नेक्स्ट फिल्टर फिर से ज्वाइन करना है। ज्वाइन किसका साथ? ट्रेन स्टेशन नेम एज S1 लिख दो इसका। ऑन कौन सा कंडीशन? इस दोनों में कॉमन के फॉर्म लिख दो या टू लिख दो, कोई भी एक कॉमन मिल जाएगा तुमको। थ्री डॉट ट्रेन फॉर्म इक्वल टू एस डॉट स्टेशन आईडी। तो तुम्हारा ज्वाइन हो गया। अब इसमें से सिलेक्ट करो। सिलेक्ट एस तारीख ना, सब सिलेक्ट नहीं करना चाहता हूँ मैं। थ्री डॉट, हाँ पहले तो ट्रेन नेम, फर्स्ट ट्रेन नेम चाहिए। और क्या चाहिए? व्हाट एक्चुअली नीड ट्रेन नेम, टाइप डिस्क्रिप्शन। तो टाइप डिस्क्रिप्शन कहाँ से मिलेगा? टीपी से मिलेगा। दिस वन विल गिव द टाइप डिस्क्रिप्शन, टाइप डिस्क्रिप्शन। और स्टेशन नेम भी चाहिए, तो S1 डॉट स्टेशन नेम, स्टेशन नेम। तो डन। फॉर्म, और नाउ फॉर्म लिख दो एंड दिस थ्री। Now moving to the seventh question. Actually, we are nearly in. So this one, college management system. First, for the table, I have already made couple of video regarding Capgemini contingent. You can check my contingent Gensis like assessment, Capgemini or company-wise preparation. Check it. Now moving to the next question. You have college management. First, see the table properly. The foreign key, primary key. Now display student name. तो मुझे student name कहाँ पे मिलेगा? Which table? Is sub student name, student table, student name, and subject marks. So subject names, subject name which table? This subject. So I need one table, two table, and the marks. Marks this one. So one table, two table, three table. So I need three tables. Three tables को मुझे join करना है. I need to join three table. One student. First find the common table. One student. Second subject. And third marks. तुम्हें तीन टेबल को ज्वाइन करना है फर्स्ट। अब ज्वाइन का किस बेसिस में करो? व्हाट? तीनों व्हाट एक्चुअली कॉमन। यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, दिस वन आल्सो स्टूडेंट आईडी, एंड देयर आल्सो स्टूडेंट आईडी। सो यू कैन फाइंड स्टूडेंट आईडी और यू कैन से हियर आल्सो सब्जेक्ट आईडी, हियर आल्सो सब्जेक्ट आईडी। तो हर स्टूडेंट का सब्जेक्ट का भी सिस्टम में मार्क्स चाहिए। आई नीड टू मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट। स्टूडेंट, स्टूडेंट का मार्क्स चाहिए, उसके बाद उसका सब्जेक्ट कौन सा है एंड सब्जेक्ट आईडी कौन सा है। तो उस सब्जेक्ट आईडी का, जैसे सब्जेक्ट मैथ्स हो तो उस मैथ्स का कोई आईडी होगा। तो उस आईडी मैथ्स का सब्जेक्ट 1001, तो उसका मार्क्स चाहिए मुझे। पहले फर्स्ट आई विल, फर्स्ट में स्टूडेंट टेबल के साथ सब्जेक्ट टेबल का ज्वाइन करूंगा ऑन कंडीशन ऑफ स्टूडेंट आईडी। नेक्स्ट आई विल ज्वाइन सब्जेक्ट एंड मार्क्स टेबल on the basis of subject ID, because I need student marks for each subject ID। मुझे क्या चाहिए? नेम चाहिए स्टूडेंट का, एंड मैं फाइनल आंसर नेम एंड द सब्जेक्ट नेम आल्सो मार्क्स। तो पहले नेम एंड सब्जेक्ट दोनों टेबल, फॉर टू टेबल कॉमन एक्चुअली, टू टेबल कॉमन स्टूडेंट आईडी एंड दिस सब्जेक्ट टू मार्क्स कॉमन एक्चुअली सब्जेक्ट आईडी। सो जस्ट डू ज्वाइन, इट विल गिव ऑल द आंसर। अगर ज्वाइन कर दिया तुमको मिल गया तुम्हारा पूरा आंसर। तो पहले ज्वाइन, फर्स्ट ज्वाइन देखो मुझे क्या करें, मार्क्स को, मार्क्स को आई कैन ज्वाइन मार्क्स ऑल्सो, क्योंकि लास्ट मुझे मार्क्स ज्वाइन करना है। मार्क्स, तो मुझे वो चाहिए जिसका एक्चुअली मार्क्स प्रेजेंट हो सकते कुछ भी स्टूडेंट जिसका मार्क्स नहीं आया कोई रीजन में। व्हाई आई टेक मार्क्स एज फर्स्ट? व्हाई? द फाइनल आंसर डिपेंड ऑन द मार्क्स। इट कैन बी पॉसिबल सम स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई, so I need actually marks, or you can first declare the name, it will not any effect. So you can join from the left part or right part, it will not effect actually for here। तो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ऑन ज्वाइन मास्टर सब्जेक्ट का ऑन मार्क्स डॉट सब्जेक्ट
आईडी इक्वल टू सब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट आईडी। तो ज्वाइन करना उसके ऊपर फिर से ज्वाइन करूंगा ना, किसके साथ, स्टूडेंट टेबल के साथ। स्टूडेंट ऑन, इन दोनों के बीच में कौन सा कॉमन है, सब्जेक्ट, और स्टूडेंट और सब्जेक्ट का टेबल में कौन कोई कॉमन है, 1 मिनट। अच्छा, स्टूडेंट टेबल ही कॉमन, तो स्टूडेंट के साथ मार्क्स के साथ स्टूडेंट का ज्वाइन कर दो, फिर सब्जेक्ट का कोई भी ज्वाइन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके साथ स्टूडेंट का ज्वाइन कर दो और सब्जेक्ट डॉट स्टूडेंट, और यू कैन ज्वाइन हियर दिस वन आल्सो। फर्स्ट मार्क्स के साथ स्टूडेंट का ज्वाइन करो, इट विल बी बेटर। व्हाई एक्चुअली, पहले मार्क्स के साथ स्टूडेंट का ज्वाइन करते हो। देखो, मुझे उस स्टूडेंट का चाहिए जिसका मार्क्स प्रेजेंट हो। पहली बात, क्वेश्चन को और अच्छे से देखो। स्टूडेंट टेबल, फर्स्ट स्टूडेंट टेबल, सेकंड मार्क्स, एंड दैट वन सब्जेक्ट। पहली बात, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है ना, सब्जेक्ट जैसे साइंस से कुछ कॉमर्स हो सकते हैं, बट कोई एक स्टूडेंट के लिए तो साइंस कॉमर्स दोनों नहीं मिलेगा, तुम कुछ भी तरह का ज्वाइन कर सकते हो, बट बेटर ज्वाइन व्हिच वन एक्चुअली बेटर। मुझे जिस स्टूडेंट का मार्क्स है वही स्टूडेंट चाहिए, so marks to student and student to subject, so it will be better, but you can do also student to marks, marks to subject, you can do student to subject to marks, so it will give proper result because you are doing inner joint, it will not affect, but better one actually marks to student then subject. When you do more practice then you will understand this type of concept. So इस दोनों में on marks dot student id equal to student dot student id, अब फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, और कौन सा, सब्जेक्ट, फॉर सब्जेक्ट ऑन कंडीशन, इन दोनों में कंडीशन कौन है, मार्क्स डॉट सब्जेक्ट आईडी, कौन सा सब्जेक्ट है मार्क्स के लिए, एंड सब्जेक्ट डॉट सब्जेक्ट आईडी। so it will be better join, क्योंकि मुझे which I need the slate of the student who is actually present marks and the which actually marks have the subject id, so it will be the better join actually. I can do other way also, and मुझे क्या चाहिए, स्टूडेंट नेम, student dot name, what actually I want, student name, subject name, and the marks object, student name and subject name. So subject and I'll find subject dot subject name and the marks. So marks dot marks, and there's a table marks dot value, marks dot value. So मिल गया, and now form and this join. And then the last question, if you understand till now, just comment. If you have any doubt, you can also comment. Our number of students is department and display department name along with count. तो जब पहले डिपार्टमेंट चाहिए एंड स्टूडेंट चाहिए, बाकी टेबल्स नहीं चाहिए। आई नीड 2 टेबल्स, फर्स्ट वन डिपार्टमेंट टेबल, सेकेंड स्टूडेंट टेबल, इन दोनों को ज्वाइन तो करना है पहले बात। अब मुझे काउंट करना है हर डिपार्टमेंट में कितना स्टूडेंट है। इट इज लाइकली पॉसिबल जैसे सम डिपार्टमेंट, लाइक कोई नया डिपार्टमेंट खोल दिया, CSC डेटा साइंस, जिसमें कोई भी स्टूडेंट नहीं है, तो इसके आंसर क्या होगा, 0। तो मैं ये भी चाहता हूँ, आई नीड दिस वन ऑल्सो, आइदर द स्टूडेंट प्रेजेंट और नॉट। मुझे डिपार्टमेंट हमेशा चाहिए, तो इसके लिए कौन सा जॉइंट होगा, लेफ्ट जॉइंट। द लेफ्ट जॉइंट एक्चुअली इट विल गिव द लेफ्ट पार्ट, इट विल प्रेजेंट द राइट पार्ट नॉट, इट विल नॉट सी। मुझे लेफ्ट पार्ट हमेशा चाहिए, तो पहले बात मुझे लेफ्ट जॉइंट चाहिए, गॉट इट। एंड देन आई नीड टू काउंट, पहले मैं ज्वाइन कर लूंगा, फर्स्ट आई नीड टू डू जॉइंट, एंड हु इज जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट। उसके बाद मुझे जो डिपार्टमेंट मिलेगा, सपोज डिपार्टमेंट में एक्चुअली हुई टेबल है, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट ब्लॉक नंबर, आई डोंट नीड द ब्लॉक नंबर, आई नीड द डिपार्टमेंट नेम। अब मुझे डिपार्टमेंट नेम ज्वाइन के बाद ऐसा मिलेगा, सपोज आईडी एंड फिर डिपार्टमेंट नेम, तो यहाँ पे नेम मिला, एंड उसके बाद स्टूडेंट, बाकी टेबल जो होगा ज्वाइन। इसका डिपार्टमेंट सपोज एमई में कोई स्टूडेंट है, उसका आईडी मिल जाएगा, फिर से एमई। तो मुझे इस ए में कितना टाइम है उतना टाइम स्टूडेंट, तो मैं इसको आई नीड टू काउंट। तो काउंट करने का तरीका क्या है, ग्रुप बाय, तो मुझे ग्रुप करना चाहिए।
क्योंकि एमी फिर से सपोज सीएससी हुआ, कुछ सीएससी एआईएमएल हुआ, और सीएस आईटी, then it group by and then count. तो do group by mean तो जितना भी मैकेनिकल हुआ तो उसको the mechanical student will be one group, CSC will be one group, and then I need to count that group. So there's a two function. One is group by, and with group by use the count. First join, then group by, then count. So one by one we'll do what? First understand the question properly. What actually need? First we need the join, and who is the left join? So the department को department डिपार्टमेंट एज डी लिख देता हूँ। ज्वाइन करना है ज्वाइन, इसको स्टूडेंट को स्टूडेंट एज एस लिख देता हूँ। ऑन कंडीशन क्या है, डी डॉट व्हाट इज द कॉमन बिटवीन डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी। so d dot department id equal to s dot department id। फिर ज्वाइन मिल गया। नेक्स्ट आई नीड टू द ग्रुप बाय, मुझे ग्रुप करना है, ग्रुप बाय and basis on the d dot department name। और मुझे उसका काउंट करना है, तो काउंट आई नीड टू डू काउंट हियर, select the answer must be, first see the answer is student with department name, मुझे स्टूडेंट चाहिए और डिपार्टमेंट नेम चाहिए, d dot department name and I need to count the count of s dot student id, जितना स्टूडेंट आईडी होगा उतना ही स्टूडेंट आईडी as student count। And now form, now you do the joint। If you understand everything, comment. If you feel valuable this channel, like and share and subscribe. Okay, let's see you in the next lecture.